Hello friends, so I am back with my new lecture, that is Targeted Public Distribution System, TPDS, or you can say PDS, one form of PDS, and the issues surrounding TPDS in India, and its comparison with the National Food Security Act, and its comparison with the direct benefit transfer and conditional cash transfer. So I already told you that I will take this lecture in my when I am going to bring my new lecture, and so I am here with this new lecture of TPDS. So I will be starting this new lecture. As you already know that public distribution system, that is the distribution system in India, distribution of the food grains to the needy sections of the population in India, so that they get the subsidized food grains, and at a at subsidy they will get the food grains, and thus ensuring the food security to the poor population of the country. So I'll be starting my new lecture. So this is the public distribution system. As I've already told you that before I'll explain PDS again, I want to tell you that this lecture is very important as far as your examination point of view, from your GS point of view, plus from your essay point of view also. So you must know this lecture, you must concentrate on this lecture, and whatever points I am going to tell you in the coming slides or in this slide also, so please note it down, and I hope that you please remember all the points which I am mentioning in the slides. So public distribution system evolved as a system for distribution of food grains, as I've already told you, at affordable prices and management of emergency situations. So PDS, it was evolved as a system for distribution of food grains at affordable prices. Affordable means at subsidized prices, at those prices on which the population can afford that price. So at affordable prices and management of emergency situations. Emergency situations like if there is any food insecurity in India, limitation of food is there, or stock of food grains are less as compared to the demand, supply is less. So in that, for considering that emergency situations also, and plus to ensure the food security of the poor people, this PDS has been evolved in India. So PDS is an Indian food security system established by the Government of India under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and managed jointly by the state governments in India. So PDS basically मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है, जो रामविलास पासवान अभी करंटली जिसके मिनिस्टर हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं. सो इसके अंडर में पीडीएस आता है, एंड इट इज़ मैनेज्ड, इम्प्लीमेंटेड एक्चुअली बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था, सेंट्रल ने, बट इसको इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट. So you must note that point. Then it distributes subsidized food and non-food items to India's needy sections. This scheme was launched in June 1947. तो ये जून 1947 में लॉन्च हुई थी PDS. It functions through a network of fair price shops at a subsidized price on a recurring basis. तो ये fair price shops के नेटवर्क एस्टैब्लिश किए गए देश में. फेयर प्राइस शॉप्स आप समझ लीजिए राशन की दुकानें, राशन शॉप्स होती है ना, जहाँ पे आपका राशन कार्ड चलता है, तो जहाँ से सरकारी जो राशन की दुकानें होती हैं, तो वो फेयर प्राइस शॉप्स की यहाँ बात कर रहे हैं. सो इट फंक्शंस थ्रू ए नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स एट ए सब्सिडाइज प्राइस. सब्सिडाइज प्राइस पे मिलेगा वहां से राशन आपको ऑन ए रिकरिंग बेसिस. रिकरिंग मतलब अकरेंस, मल्टीपल अकरेंस और रिपीटेड अकरेंस. तो आपको मिलता रहेगा एज पर योर डिमांड, बट सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस. कुछ मंथली लिमिटेशंस जरूर थी. सब्जेक्ट टू दोज लिमिटेशंस यू विल गेट recurrent food grains each and every month. Now how did it evolve? Till 1992
पीडीएस वाज ए जनरल एंटाइटलमेंट स्कीम फॉर ऑल कंज्यूमर्स विदाउट एनी स्पेसिफिक टारगेट। तो मैं आपको बता दूं, जब ये पीडीएस इवॉल्व हुआ था तो कोई टारगेट नहीं था, यानी कि टारगेट नहीं था मतलब ये सब सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन को, यानी कि देश में जितने भी करोड़ पॉपुलेशन थी ना, सभी को राशन कार्ड जिसने भी बनवा लिया वो राशन कार्ड लेकर जाएगा राशन की दुकानों पे, और वो वहां से जाके ले आएगा राशन जो भी गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट जैसे व्हीट एंड राइस दे रही थी, तो वहां से जाके, और नॉन फूड आइटम्स ऑल्सो। सो फूड एंड नॉन फूड दोनों आइटम्स इसके द्वारा दिए जाते थे। फूड आइटम्स आपको मैंने जैसे बताए, व्हीट, राइस, देन योर पल्सेस ऑल्सो, ऑयल सीड्स ऑल्सो, तो वो भी दिए जाते थे। उसके अलावा नॉन फूड आइटम्स ऑल्सो। तो उस टाइम नॉन फूड तो ऐसे बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता था, बट नॉन फूड आप समझ लीजिए, जैसे दोज आइटम्स लाइक कॉटन, ठीक है ना, और आपका हो गया कॉटन हो गया, और मेनली कॉटन। तो नॉन फूड आइटम्स एक बार मैं इसको देख लूंगा, मेनली कॉटन है इसमें। नॉन फूड आइटम्स में सभी, आप कपड़े वपड़े मत समझिए, बस कॉटन वगैरह दिया जाता था नॉन फूड आइटम्स में, मेनली फूड आइटम्स दिए जाते थे। बट 1992 तक कोई टारगेटेड पॉपुलेशन नहीं थी, सभी को दिया जाता था, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि अमीर है गरीब है, सबको दिया जाता था। अब 1992 में ये आरपीडीएस बन गया। आरपीडीएस मतलब रिवैम्प्ड पीडीएस, इसको थोड़ा सा चेंज किया गया इसमें, फोकसिंग दी पुअर फैमिलीज को फोकस किया गया, पर कहां? इन दी फार फ्लंग हिली, रिमोट एंड इनएसेसिबल एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्ट, लाइक माउंटेनियस एरियाज, ऐसे एरियाज लाइक डेजर्ट एरियाज, उन एरियाज जो कि थोड़े से फार फ्लंग, जो एक ऐसी जगह पर हैं जो कि दूर है, मेन स्ट्रीम से दूर है, प्लस फार फ्लंग है, दूर है, इनएसेसिबल है, बहुत इजीली एसेसिबल नहीं है, रोड नेटवर्क वहां पे पुअर है, और हिली एरियाज टाइप। तो यहाँ पे ये रिवैम्प्ड पीडीएस, बट टू ऑल दी पॉपुलेशन देयर ऑल्सो, फोकसिंग पुअर फैमिलीज पे किया गया। लेकिन अगर आपने अमीर किसी एक नॉर्मल व्यक्ति ने भी राशन कार्ड बनवा लिया तो भी उसको मिल जाएगा। अब 1997 में ये टीपीडीएस हुआ, जहां पे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा आरपीडीएस चेंज हुआ टीपीडीएस में। यहां पे फेयर प्राइस शॉप्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया फूड ग्रेन्स का, जो मैंने बताया, राशन की दुकानों से एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। अब टारगेटेड क्यों बोला गया है? क्योंकि ये टारगेटेड हो गया, यानी कि कोई टारगेट एक बनाया गया कि किसको देना है, सभी को नहीं देना, किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को देना है। वो टारगेट कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड ऐसे होगा कि केवल पुअर फैमिलीज को दिया जाएगा जिसकी इनकम एक पर्टिकुलर नंबर से कम है, कि मतलब मान लीजिए 23 रुपए पर डे से कम कमाता है पर डे, तो दैट कम्स अंडर पुअर फैमिली या पुअर पर्सन। तो उस फैमिली को दिया जाएगा जहां जिसकी इनकम इतनी उससे कम होगी। तो एक टारगेट बनाया गया, एक टारगेट ग्रुप बनाया गया, उस टारगेट ग्रुप को फोकस किया गया, उस टारगेट ग्रुप को ही राशन दिया जाएगा 1997 से। उसके बाद खत्म हो गया 1997 के बाद, तो ये सबको नहीं मिलेगा, जो पुअर फैमिली होगी, पुअर पीपल होंगे, केवल उन्हीं को दिया जाएगा। तो ये इसको एक तरह से रिफॉर्म किया गया, और एक अच्छा रिफॉर्म दिया गया, क्योंकि पहले मिसयूज भी होता था इसका, जो कि टीपीडीएस 1997 में इसका बंद हो गया। ठीक है, इस पे डिटेल में बात करेंगे टीपीडीएस के ऊपर। टीपीडीएस इज टारगेटेड पीडीएस। जैसे मैंने आपको बताया कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1997 अंडर द मिनिमम कॉमन नीड प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट एनविसाज आइडेंटिफाइंग द पुअर हाउसहोल्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया, जैसे मैंने बताया, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को जो मीट करते होंगे, एंड गिविंग देम ए फिक्स्ड एंटाइटलमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, राइस, व्हीट एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस एट हाफ द इकोनॉमिक कॉस्ट। तो उनको दिया गया सब्सिडाइज प्राइस पे राइस और व्हीट प्रोवाइड किया गया उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टारगेटेड पॉपुलेशन को एट हाफ द इकोनॉमिक कॉस्ट। जो मार्केट प्राइस है उससे आधे रेट पे दिया गया। मार्केट में 10 रुपए तो 5 रुपए पे मिलेगा। द न्यू सिस्टम फॉलोड ए 2 टायर सब्सिडाइज प्राइसिंग स्ट्रक्चर। 2 टायर प्राइसिंग स्ट्रक्चर फॉलो किया, वन फॉर बीपीएल के लिए अलग फॉलो किया और एपीएल के लिए अलग फॉलो किया। ये मैं आपसे आगे बात करूंगा कि इनको 2 टायर प्राइसिंग कैसे हुई, क्या प्राइसिंग हुई, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि एपीएल को भी दिया गया और बीपीएल को भी दिया गया। अब पॉवर्टी लाइन, अब आप यहां पे समझिए, सबको रिच को नहीं दिया गया। एक लिमिट डिसाइड की गई कि बीपीएल को मिलेगा, एपीएल को मिलेगा, एक लिमिट डिसाइड की गई। एपीएल भी
बीपीएल जो होंगे वो उस पर्टिकुलर लिमिट से नीचे जाएंगे और उस पर्टिकुलर लिमिट से जो होंगे वो एपीएल ऊपर जाएंगे। बट एपीएल में भी एक लिमिट बनाई गई, वो लिमिट के जो नीचे होंगे वही एपीएल लोगों को मिलेगा, सभी एपीएल्स को नहीं मिलेगा। तो बीपीएल में सभी को मिलेगा, बट एपीएल में भी एक लिमिट बनाई गई टीपीडीएस में। इन ऑर्डर टू मेक टारगेटेड, अब मोर इफेक्टिव करने के लिए द गवर्नमेंट हैड लॉन्च द अंत्योदय अन्न योजना इन दिसंबर 2000। अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च की गई। अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च की गई पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए, वाज टू आइडेंटिफाई द पुअरेस्ट हाउस होल्ड, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, पुअर में भी जो पुअरेस्ट होंगे अमंग द बीपीएल, बीपीएल में जो सबसे ज्यादा पुअर होंगे, एंड टू प्रोवाइड ईच ऑफ देम विद द फॉलोइंग 35 किलो आपको राशन मिलेगा पर मंथ, फिक्स प्राइस ऑफ 2 रुपए पर किलोग्राम वीट एंड 3 रुपए पर किलोग्राम राइस की रेट से मिलेगा। ये इसके ऊपर आगे भी बात करेंगे हम। तो इश्यूज क्या है टीपीडीएस में? इश्यूज क्या है टीपीडीएस? आप समझ गए कि भाई पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को दिया गया अंत्योदय अन्न योजना, वो कि टीपीडीएस का ही एक पार्ट है। टीपीडीएस में एक टारगेट डिसाइड किया गया, उस टारगेट को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स दिए गए। ये एज सिंपल एज दैट है। अब व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद टीपीडीएस? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, ऑब्वियसली किसको दिया जाना है वो एक बहुत बड़ा इशू है कि वो कैसे आइडेंटिफाई होगा। स्टडीज हैव शोन दैट टारगेटिंग मैकेनिज्म सच एज टीपीडीएस आर प्रोन टू लार्ज इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स। इसमें बहुत ज्यादा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स हैं, यानी कि किसको इंक्लूड किया है किसको एक्सक्लूड किया है उसमें बहुत एरर्स हैं। जिसको इंक्लूड नहीं करना था उसको एक्सक्लूड कर दिया, जिसको एक्सक्लूड करना था उसको इंक्लूड कर दिया। तो बहुत एरर प्रोन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के टर्म्स में टीबीडीएस में रहा है। दिस इंप्लाइज दैट एंटाइटल्ड बेनिफिशियरीज आर नॉट गेटिंग food grains while those that are ineligible are getting undue benefits, that I have already told you. Then issue with procurement, procurement में बहुत बड़ा इशू था। क्या इशू था कि ओपन एंडेड प्रोक्यूरमेंट, इसमें एक मॉडल फॉलो किया गया ओपन एंडेड प्रोक्यूरमेंट, दैट इज ओपन एंडेड प्रोक्यूरमेंट के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी आप समझ लीजिए ओपन एंडेड प्रोक्यूरमेंट फॉलो किया गया मॉडल, और इसके थ्रू क्या है, जितनी भी ग्रेन्स आएंगी, जितनी भी ग्रेन्स मार्केट में फार्मर्स लेके आए, सभी को खरीद लिया गया गवर्नमेंट द्वारा एमएसपी के ऊपर। ठीक है ना, एमएसपी हमने ऑलरेडी बात की है। तो पीडीएस सिस्टम हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीदती है ग्रेन्स, और एमएसपी का यूज क्या होता है, पीडीएस को दे देती है, पीडीएस के एफसीआई को दे देती है, एफसीआई फिर पीडीएस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करती है, और कुछ पार्ट एफसीआई जो है मार्केट में भी बेच देती है। बट ऑब्वियसली एफसीआई जो मार्केट में बेचती है, तो क्योंकि एफसीआई को सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से, तो एफसीआई जो है मार्केट रेट पे नहीं बेचती है, एफसीआई ऑब्वियसली कम दाम पे ही बेचती है। तो जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी, और इनकमिंग ग्रेन्स एक्सेप्टेड इवन इफ बफर स्टॉक, तो इसमें क्या है ना, अगर बफर स्टॉक फिल भी हो गया, एफसीआई के गोडाउन्स भर गए, फिर भी गवर्नमेंट को खरीदना है, खरीद रही है गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट फॉलोज है ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। इट क्रिएट्स अ स्टोरेज शॉर्टेज इन दी ओपन मार्केट, मार्केट में एक्चुअल मार्केट में शॉर्टेज हो गई इससे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, जो कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट मॉडल की वजह से हुई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि इस मॉडल की वजह से प्रॉब्लम हुई, स्टॉक भर गया, उसके बाद भी खरीदा गया ग्रेन्स, जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज हो गई, और ऑब्वियसली वहां पे रखने की जगह नहीं थी तो सड़ गया। जैसे आप देखते हैं रेलवे स्टेशनों पे सड़ गया, कभी आप देखते हैं गोडाउन में ही सड़ गया, वो गया ही नहीं नीडी पीपल के पास, कभी आप देखते हैं सड़क पे सड़ गया, ट्रक में सड़ गया, सड़ जाता है ग्रेन। इश्यूज विद शॉर्टेज, ए परफॉर्मेंस ऑडिट बाय द कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज रिवील्ड ए सीरियस शॉर्टफॉल इन द गवर्नमेंट स्टोरेज कैपेसिटी, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि स्टोरेज लिमिटेड है एफसीआई के पास, जिसकी हमने लास्ट लेक्चर में बात भी की थी कि कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, स्टोरेज कैपेसिटी को, यानी कि जो गोडाउन्स है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा जो वैल्यू एडिड चेन है, प्लस जो आपका जो स्टोरेज है, डीप फ्रीजर जो स्टोरेज होता है आपका, वो डीप ये फ्रीजर स्टोरेज जो स्टोर करते हैं, उसकी कैपेसिटी को इन्हें बढ़ाना पड़ेगा। मोनोक्रॉपिंग, ऑब्वियसली मोनोक्रॉपिंग का प्रॉब्लम आ गया इसकी वजह से, टीपीडीएस की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट को खरीदना है, पीडीएस में बांटना है, तो गवर्नमेंट को खरीदना है, तो सब लोग मोनोक्रॉपिंग करने लगे फार्मर्स। इससे वजह से सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो गई, वाटर डिप्लीशन हो गया, जो मैंने आपको पहले बताया था। राइस एंड व्हीट, डाइवर्जन ऑफ लैंड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन्स, तो प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन से सीरियल्स पे डाइवर्जन हो गया राइस व्हीट में। अंडर डिस्करेजेस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन,
इन्वायरमेंटल इश्यूज, यही जैसे मैंने बोला, द ओवर एम्फेसिस ऑन अटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी एंड ए सरप्लस इन फूड ग्रेन्स विच आर वाटर इंटेंसिव हैज बीन फाउंड टू बी इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल। ठीक है ना, क्योंकि आप उसी क्रॉप को उगाते रहोगे तो इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल है, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। और वाटर डिप्लीशन हो गया वाटर टेबल का, सोइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई। तो ये सब इश्यूज थे टीपीडीएस के साथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, कंपैरिजन बिटवीन टीपीडीएस एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आपको मालूम है कि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया था हमारे देश में, दैट कम्स इन अराउंड 2013 और 11 समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, बट ये कांग्रेस गवर्नमेंट राइट टू फूड लाई थी। तो बेसिकली कुछ नहीं है, एनएफएसए इज द राइट टू फूड। सो अभी हम पढ़ते हैं टीपीडीएस, आपको पता है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम विद नो लीगल बैकिंग। लीगल बैकिंग कुछ नहीं है, नहीं मिलेगा राशन तो आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे, किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं करा पाएंगे क्योंकि लीगल बैकिंग नहीं है। फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा टीपीडीएस को लीगल बैकिंग दे दी गई, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया कि टीपीडीएस हैज गॉट द लीगल बैकिंग, यानी कि विद द स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर राइट टू फूड। अब राइट टू फूड सबके लिए नहीं है, ये केवल किसके लिए है? पुअर पीपल के लिए है। मैं बताऊंगा, अप टू 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन आर इंक्लूडेड, इनके लिए एनएफएसए यानी कि राइट टू फूड इनको दिया गया। टोटल कवरेज है 67.5% ऑफ ऑल पॉपुलेशन। इसमें कवरेज क्या है टीपीडीएस में? रेस्ट्रिक्टेड टू दी पुअर बीपीएल हाउस होल्ड, एपीएल फैमिलीज कैन गेट ग्रेन्स फ्रॉम राशन शॉप्स बट नॉट एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। मैंने आपको बोला एपीएल फैमिलीज को मिलेगा बट सब्सिडाइज्ड प्राइस पे नहीं मिलेगा, कम प्राइस ये जो है मतलब उस पर मिलेगा, इनको मार्केट रेट पे मिलेगा। और बट मार्केट रेट नहीं होता, मार्केट से ऑब्वियसली कम होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और एपीएल में भी कैटेगरी इन्होंने बनाई कि जो रिच कैटेगरी है उनको नहीं मिला, एपीएल में भी इन्होंने एक थोड़ी मीडियम कैटेगरी लोगों को एपीएल में दिया गया, रेस्ट्रिक्टेड टू पुअर बीपीएल। और ये पुअर बीपीएल को दिया गया टीपीडीएस मेनली, जो मैंने बीपीएल की बात की। उसमें फूड सिक्योरिटी यूनिफॉर्मली 50% और 75% दिया गया यूनिफॉर्मली। कैटेगराइजेशन, इसमें कैटेगराइजेशन क्या है? एएवाई दैट इज अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स, बीपीएल एंड एपीएल। उसमें कैटेगराइजेशन क्या है? अंत्योदय अन्न योजना, प्रायोरिटी एंड एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब जिनको नहीं दिया जाएगा। अंत्योदय अन्न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड द प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स आपके हो गए जो कि आप मान लीजिए अंत्योदय अन्न से तो नीचे हो गए, मतलब उनसे अंत्योदय अन्न तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, बट प्रायोरिटी मतलब एक तरह से बीपीएल कैटेगरी मान लीजिए, दैट इज द प्रायोरिटी। उसको नाम बीपीएल कैटेगरी को प्रायोरिटी हाउस होल्ड दे दिया गया, बट दैट इज इक्वलेंट टू द बीपीएल कैटेगरी। एंटाइटलमेंट्स क्या है? बीपीएल और अंत्योदय अन्न का सेम एंटाइटलमेंट है, दैट इज 35 किलोग्राम पर फैमिली पर मंथ, और एपीएल को 15 to 35, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें भी कैटेगरी है। सबको 15 किलो नहीं मिलेगा और सबको 35 किलो नहीं मिलेगा, उसमें कैटेगरी है। इसमें प्रायोरिटी को 5 किलोग्राम पर पर्सन और अंत्योदय अन्न को 35 किलोग्राम, एक्सक्लूडेड को कुछ नहीं मिलेगा, 35 किलो पर फैमिली। तो अंत्योदय अन्न को तो हर जगह 35 किलो मिलेगा दोनों में। इसमें बीपीएल में 35 किलो, उसमें बीपीएल में 5 किलो पर पर्सन पर मंथ, थोड़ा चेंज कर दिया गया। प्राइस क्या है? अंत्योदय अन्न को 3 किलोग्राम के रुपए के रेट पे राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन्स, और बीपीएल को भी। और इसमें 3, 2, 1 सभी को दिया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। 3 रुपए पर किलोग्राम ऑफ राइस, 2 रुपए पर किलोग्राम ऑफ व्हीट एंड 1 rupee पर किलोग्राम ऑफ कोर्स ग्रेन्स इज प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, टू अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स, बोथ। इसमें भी यूनिफॉर्मली दिया गया अंत्योदय अन्न को, दिया गया। एंड बीपीएल का मेरे ख्याल प्राइस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें तो यूनिफॉर्मली है, इसमें डिफरेंट है टीपीडीएस में। मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, आई विल मेंशन इट इन दी कमेंट सेक्शन, कमेंट्स में मैं इसमें डाल दूंगा।
कि बीपीएल को कितने रुपए पे दिया गया, बट उसमें यूनिफॉर्मली नेशनल फूड सिक्योरिटी में बीपीएल और अंत्योदय अन्न को यूनिफॉर्मली प्राइसिंग पे दिया गया, बट डिफरेंस इज कि अंत्योदय अन्न को 35 किलोग्राम दिया गया पर मंथ पर फैमिली, और इसमें 5 किलोग्राम पर पर्सन पर फैमिली को दिया गया। ग्रीवेंसेस, इसमें ग्रीवेंसेस जो भी होंगे टीपीडीएस में कि स्टेट्स मॉनिटर करेंगे और विजिलेंस एट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पे होगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया एनएफएसए में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट फूड कमिश्नर्स का प्रोविजन दिया गया, क्योंकि लीगल बैकिंग है तो ये करना पड़ेगा। विजिलेंस कमिटीज इसमें भी डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल्स पे बनाई गई, बट डिफरेंस ये था कि स्टेट फूड कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट किया गया, और जो कि एक लीगली आपको करना पड़ेगा, उसमें बाउंड नहीं है टीपीडीएस में, इसमें बाउंड है। एंड डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट किए गए एनएफएसए में। तो आप देखिए जाइए कि एनएफएसए 2011 या 13 में आया है, तब से एनएफएसए जब से आया है, सपोज ये 13 से आया है एनएफएसए, और जब से ये आया है टीपीडीएस को लीगल बैकिंग मिल गई है। तो अभी टीपीडीएस कुछ नहीं है, अभी एनएफएसए हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एनएफएसए 70% के आसपास पॉपुलेशन को मिल रहा है, तो सबको यूनिफॉर्मली मिल रहा है अब 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के हिसाब से। बस जो पुअरेस्ट हैं उनको 5 किलोग्राम पर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को 35 किलोग्राम पर फैमिली पर मंथ, और बीपीएल को जो प्रायोरिटी जिनको कहा गया दैट इज 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन पीडीएस, डीबीटी एंड फूड कूपन्स। अब इसमें क्या है ना कि डीबीटी इज द कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड द फूड कूपन्स। अब पीडीएस क्या है, पीडीएस के क्या एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ। इंसुलेट्स बेनिफिशियरीज फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड प्राइस वोलेटिलिटी, ऑब्वियसली ये इससे आपको बच जाएंगे क्योंकि एक यूनिफॉर्म प्राइस तय कर दिया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी में। एंश्योर्स एंटाइटलमेंट इज यूज्ड फॉर फूड ग्रेन्स, और एंटाइटलमेंट फूड ग्रेन्स के लिए होगा क्योंकि फूड ग्रेन्स ही मिल रहे हैं वहां पे, तो आपको फूड ग्रेन मिल जाएंगे, यानी कि कोई भूखा तो नहीं सोएगा, एटलीस्ट 70% पॉपुलेशन को भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा क्योंकि उन्हें राइट टू फूड मिल गया है। डिसएडवांटेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, जैसे जो मैंने पीछे अभी आपको बताया डिसएडवांटेजेस, जो भी इश्यूज मैंने आपको बताए कि मोनोक्रॉपिंग हो जाएगी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा और वाटर डिप्लीशन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो जाएगा, प्लस आपका जो कि अगर आप वो उगाते रहेंगे, अगर आप सेम ये व्हीट एंड राइस आप अगर करते रहेंगे तो फोकस नहीं हो पाएगा, शॉर्टेज ऑफ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास शॉर्टेज है एफसी गोडाउन्स की, तो आपका अनाज सड़ जाएगा, ठीक है। ये सारे काफ़ी सारे इश्यूज की मैंने पीछे बात की थी। तो डिसएडवांटेजेस और भी हैं इसके, लो ऑफ टेक ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम ईच हाउस होल्ड, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ये हैं क्योंकि एक गवर्नमेंट ने लिमिट की हुई है, तो फूड ग्रेन्स कहीं ना कहीं देखा जाए तो 35 किलोग्राम है और उसमें 5 किलोग्राम है, तो हो सकता है नहीं 5 किलोग्राम मे बी लेस, कम भी हो सकता है क्योंकि आपने लिमिट सेट कर दी है, तो लो ऑफ टेक हो सकता है फूड ग्रेन्स फ्रॉम ईच हाउस होल्ड। हाई लीकेज एंड डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने बोला आपको कि लीकेज और डाइवर्सिफिकेशन भी है, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है पीडीएस सिस्टम में, ठीक है। लो हाई लीकेज है, लीकेज मतलब कैसे होता है लीकेज कि आया एफसीआई में बिकने आया, मतलब देने के लिए आया पुअर को, और पता लगा मार्केट में एफसीआई गोडाउन्स में लोगों ने बेच दिया, पुअर को मिला ही नहीं, तो लीकेज बहुत है। डाइवर्जन ऑफ सब्सिडाइज फूड ग्रेन, डाइवर्जन जैसे मैंने बोला। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड ग्रेन जो आया वो खराब दिया गया, अच्छा मार्केट में बेच दिया और खराब जो है लोगों को दे दिया गया, तो ये भी कुछ इश्यूज हैं इसमें पीडीएस सिस्टम में। कैश ट्रांसफर, अब ये जो सारे इश्यूज थे पीडीएस में, ये कैश ट्रांसफर के माध्यम से दूर किए गए। कैसे दूर किए गए? द कैश इन द हैंड्स ऑफ पुअर इंक्रीजेस देयर चॉइस, डायरेक्ट लोगों के बैंक के अकाउंट में पैसा पहुंचा दिया गया। क्या पैसा पहुंचाया कैश ट्रांसफर में, क्या करते हैं मैं आपको समझा दूं। कैश ट्रांसफर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसको बोलते हैं डीबीटी। इसमें ये लोग क्या करते हैं, अब क्या है, खत्म हो गया किस्सा कि लोगों को जो है 5 किलोग्राम की सब्सिडी देनी पड़ेगी आपको ग्रेन्स पे,
तो 5 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 3 किलोग्राम वो जो सब्सिडी दे रहे थे, तो अब क्या कर रहे हैं ये कि सीधा कैश पुअर के खाते में डाल रहे हैं। कैश इन द हैंड्स ऑफ पुअर इंक्रीजेस देयर चॉइसेस, कैश में रिलीव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फेस बाय द पुअर। तो डीबीटी में ये क्या कर रहे हैं कि अब ग्रेन नहीं दे रहे हैं, अब कैश ही डाल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? पहले क्या कर रहे थे, ग्रेन सब्सिडी पे दे रहे थे, अब उससे क्या है ना, बहुत सारा लीकेज हो रहा था, डाइवर्जन हो रहा था, बहुत सारे करप्शन के इश्यूज आ रहे थे, और जो मैंने इश्यूज की बात की, तो डीबीटी में इन्होंने क्या किया कि अब क्या है कि एफसीआई के पास खाना, अब ग्रेन्स नहीं भेजेंगे गोडाउन में, ग्रेन्स के स्टोरेज नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, डीबीटी यानी कि डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया पुअर के। अब वो क्या करेंगे, मार्केट से ही खरीद लेंगे। तो कैश में रिलीव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फेस बाय द पुअर, administrative cost of cash transfer programs may be significantly lesser than that of other schemes, potential for making electronic transfer। वही जो मैंने बोला कि काफी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी भाई। उसमें फिजिकली आपको ग्रेन इधर से उधर पहुंचाना पड़ता था, एफसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता था, वहां पे एम्प्लॉयज मेंटेन करने पड़ते थे, फिर उसके बाद वहां पे इतना सारा करप्शन था जिसकी वजह से खाना मिलता नहीं था। अब सीधे खाते में पहुंचेगा, आप मार्केट रेट पे खरीद लीजिए। अब इसका ये एक इशू भी है, कैश कैन बी यूज्ड टू बाय नॉन फूड आइटम्स। अब क्या हुआ, आपके खाते में कैश आया तो आप नॉन फूड आइटम्स भी खरीद सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती, आपको तो फूड खरीदने के लिए दिया गया है। मे एक्सपोज रेसिपेंट्स टू प्राइस वोलेटिलिटी एंड इन्फ्लेशन, क्योंकि मार्केट रेट पे खरीदेंगे, क्योंकि कैश आ गया, मार्केट रेट पे खरीदो। देयर इज पुअर एक्सेस टू बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस इन सम एरिया। ये सब इश्यूज हैं, ऑब्वियसली ये सब इश्यूज हैं इसमें, क्योंकि कैश आएगा तो आपको प्राइस वोलेटिलिटी, जो भी प्राइस चेंज हो रहा है, फूड इन्फ्लेशन हो रहा है, उसको आपका सामना करना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं करना पड़ता था। लेकिन इसमें करप्शन खत्म हो गया, क्योंकि आपके आधार के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक हो गया, तो करप्शन एटलीस्ट खत्म हो गया। तो डीबीटी का एक्चुअल देखा जाए तो बहुत एडवांटेज हुआ है डीबीटी का एज कंपेयर टू ये पीडीएस टीपीडीएस। पॉपुलेशन टारगेटेड वही है, बट फिजिकली अब ग्रेन स्टोर नहीं करना पड़ा एफसीआई को। अब क्या है कि मार्केट रेट पे आप खरीद लो जाके सामान मार्केट पे, क्योंकि आपके हाथ में कैश आ गया है। इसके अलावा फूड कूपन्स की बात की है। हाउस होल्ड इज गिवन द फ्रीडम टू चूज वेयर इट बाइज फूड। अब फूड कूपन क्या है कि आपको फूड कूपन दिए गए हैं। फूड कूपन से क्या फायदा होगा, ही इज गिवन द फ्रीडम टू चूज वेयर इट बाइज फूड। वो कहीं से भी फूड खरीद सकता है, वो कैश में भी फायदा है। इंक्रीजेज इंसेंटिव फॉर कंपेटिटिव प्राइसेस एंड अश्योर्ड क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स अमॉन्ग पीडीएस स्टोर्स। तो बेसिकली क्या है, फूड कूपन्स क्या है, ये आपके पीडीएस शॉप्स पे भी चलेंगे और आपके वहां भी चलेंगे जो नॉर्मल राशन शॉप्स हैं। तो इंक्रीज इंसेंटिव फॉर कंपेटिटिव प्राइसेस एंड एश्योर्ड। अब इससे क्या होगा ना, एश्योर्ड क्वालिटी होगी फूड ग्रेन्स की, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने क्वालिटी नहीं दी तो मैं अपना फूड कूपन पीडीएस स्टोर की बजाय नॉर्मल राशन दुकान पे चला लूंगा। तो ठीक है, तो राशन की दुकानों पे क्योंकि कंपेटिटिव प्राइस इससे हो जाएगा पीडीएस, क्योंकि एक क्या से प्राइस भी कम रहेगा राशन की दुकान, और पीडीएस आप कहीं से भी फूड कूपन चला सकते हैं। सिमिलरली कैश ट्रांसफर्स में भी आप कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, पीडीएस से भी और आप वहां से भी मेन शॉप से भी, ठीक है, फूड कूपन में भी। तो फूड कूपन का लेकिन एडवांटेज क्या है कि जब आप राशन की दुकान पे वो फूड कूपन देंगे तो राशन की दुकान को बेसिकली ना उससे पैसा मिलेगा। भाई आप फूड कूपन दोगे, आप सामान खरीद लोगे। अब फूड कूपन का क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को फूड कूपन देगा और गवर्नमेंट उसको पैसा रिटर्न करेगी फूड कूपन के अगेंस्ट। तो इससे क्या होगा, राशन की दुकानों के पास आपको ज्यादा फूड ग्रेन्स बेचेंगे वो, तभी उनको पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा ही नहीं मिलेगा उनको। पहले क्या था पीडीएस में, उनको इंसेंटिव ही नहीं था, वो मार्केट में बेच देते थे क्योंकि पैसा उनको मिल जाता था। अब तो उन्हें फूड कूपन से ही पैसा मिलेगा, वैसे कोई पैसा देगा ही नहीं उनको, फूड कूपन से ही पैसा मिलेगा राशन की दुकानों में, ठीक है। और बेसिकली क्या है ना, प्रॉब्लम ये भी है इसमें, फूड कूपन आप जो है ना, मेनली क्या है ना कि अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप तो जाके मार्केट से खरीद लो, बट फूड कूपन ये प्राइवेट वाले नहीं लेंगे, तो मेनली फूड कूपन ये राशन की दुकान पे चलेंगे। तो राशन की दुकानों में फूड कूपन से ये फायदा होएगा कि राशन की दुकानें फूड कूपन लेंगी तो उसके अगेंस्ट उनको पैसा मिलेगा गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती थी, पैसा मिलता था एफसीआई को, फेयर प्राइस शॉप्स को, राशन की दुकानों को,
सॉरी एफसीआई उनको पैसा ग्रेन बेचती है ना, फेयर प्राइस शॉप्स के द्वारा मार्केट में बेचती है। तो राशन की दुकानों को तभी पैसा मिलेगा जब वो फूड कूपन गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसलिए उनके पास वो ज़्यादा से ज़्यादा आतुर रहेंगे ताकि वो फूड ग्रेन्स बेचें और फूड कूपन के अगेंस्ट गवर्नमेंट से पैसा ले पाएं। फूड कूपन्स आर नॉट इंडेक्स फॉर इन्फ्लेशन मेक्स रेसिपेंट्स टू इन्फ्लेशन। वही मैंने बोला कि फूड कूपन्स इन्फ्लेशन, क्योंकि जो अगर प्राइवेट एक्सेप्ट कर रहे हैं फूड कूपन्स, दे आर नॉट इंडेक्स फॉर इन्फ्लेशन मे एक्सपोज रेसिपेंट्स टू इन्फ्लेशन और डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर। देयर हैव नोन टू बी डिलेज इन इशूइंग फूड कूपन्स एंड रीइंबर्सिंग शॉप्स। जैसे मैंने आपको बोला कि फूड कूपन्स ही नहीं है राशन की दुकानों के पास, इन इशूइंग फूड कूपन्स। आपको कैसे आएंगे फूड कूपन्स? जहां से आपको फूड कूपन मिलेंगे कस्टमर को, वहां पे फूड कूपन अवेलेबल ही नहीं है। एंड रीइंबर्सिंग शॉप्स, और रीइंबर्समेंट नहीं हो रहा शॉप्स का अगेंस्ट फूड कूपन्स। जो वो फूड कूपन्स, फिल्ड फूड कूपन्स, स्टैम्प्ड फूड कूपन जिसमें एंट्री की कूपन के अगेंस्ट इतना राशन दिया गया, उसके अगेंस्ट जो पैसा उसको चाहिए वो तभी मिलेगा जब वो फूड कूपन कस्टमर को देगा जो पुअर है, आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट देगी। और फूड कूपन जो है राशन की दुकान प्रोड्यूस करेगी गवर्नमेंट को। तो बेसिकली गवर्नमेंट देगी फूड कूपन टू दी एंड यूजर, और एंड यूजर उस फूड कूपन को यूज करके राशन की दुकान से राशन खरीदेगा, और वो फूड कूपन, उसे पैसा कुछ नहीं देना, और वो फूड कूपन यूज करके जो राशन की दुकान वाला है, जो कि पीडीएस सिस्टम वाली सरकारी राशन की दुकान है, वो गवर्नमेंट पैसा ले लेगी उस फूड कूपन के अगेंस्ट। क्योंकि बेसिकली उन्हें तो राशन गवर्नमेंट से मिलता है ना, तो फ्री में थोड़ा मिलता है, वो पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट से उनको वो मिलता है, फंड्स मिलते हैं राशन की दुकान वालों को। एडवांटेज ऑफ डीबीटी ओवर टीपीडीएस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये लीकेज नहीं होगा इससे, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है, आधार लिंक्ड है आपके अकाउंट से, तो लीकेज नहीं होगा। सेविंग ऑन सब्सिडी बिल, ऑब्वियसली पैसा बहुत बचेगा गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट अभी क्या होती है, सब्सिडी देती है, तब सब्सिडी नहीं देगी ना गवर्नमेंट। द सेविंग्स फ्रॉम डीबीटी ऑन फूड सब्सिडी इज एक्सपेक्टेड टू बी मच लार्जर देन दैट फॉर एलपीजी। तो फूड सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है वो काफी लार्जर है, जो कि एलपीजी से भी ज्यादा है। द सेव्ड मनी कुड बी इन्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वेयर सोशल रिटर्न्स वुड बी मच हायर। तो गवर्नमेंट कहीं और इन्वेस्ट कर सकती है। तो बेसिकली क्या है ना, जो गवर्नमेंट फूड सब्सिडी दे रही है अभी टीपीडीएस में, बहुत लार्जर फूड सब्सिडी दे रही है। अब ये गवर्नमेंट क्या करेगी, डीबीटी में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर देगी। तो इससे क्या होगा, काफ़ी सारी फूड सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है एफसीआई गोडाउन्स को, एफसीआई को, और फेयर प्राइस शॉप्स को सेटअप करने के लिए वो सब्सिडी गवर्नमेंट को नहीं देनी पड़ेगी। तो काफ़ी सारी सब्सिडी गवर्नमेंट बचा लेगी। प्रोविजन ऑफ करप्शन, वही मैंने बोला कि करंटली मोर देन 40% ऑफ द फूड ग्रेन्स इन पीडीएस आर डाइवर्टेड टू ओपन मार्केट्स। हाई डाइवर्जन ऑफ पीडीएस आइटम्स, पिलफरेज, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड ग्राफ्ट इशूज वुड बी अवॉइडेड। क्योंकि ये सब करना ही नहीं पड़ेगा आपको, पीडीएस में रखना ही नहीं ग्रेन्स, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, करप्शन, ग्राफ्ट इशूज, पिलफरेज, लीकेज, हाई डाइवर्जन, जो डाइवर्जन हो जाता है वो सब बच जाएगा। तो प्रोवाइडिंग सब्सिडीज डायरेक्टली टू द पुअर वुड बोथ बाईपास ब्रोकर्स एज वेल एज रिड्यूस द वेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स इन गवर्नमेंट गोडाउन। ठीक है ना। रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, कैश ट्रांसफर वुड हेल्प रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट बाय कर्बिंग एक्सपेंडिचर्स earmarked for the PDS that are siphoned off through corruption as well as avoiding substantially higher cost of transferring food rather than cash। वही मैंने बोला कि कैश ट्रांसफर करना कंपैरेटिवली एडमिनिस्ट्रेटिव काफी चीपर है और फूड ट्रांसफर करना कॉस्टलियर है। तो फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट का कम होगा क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा सब्सिडी पे बचा लेगी। So what are the disadvantages of direct benefit transfer? That these are exposure to price fluctuation। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जब आपको पैसा पहुंच जाएगा, अब आपको मार्केट से ही खरीदना है मार्केट रेट पे, तो अगर मार्केट में फ्लक्चुएट हो रहा है रेट तो आपको भी उसी रेट पे मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप, हो सकता है पहले आपको 20 रुपए में कोई सामान मिल रहा है, अब 30 में मिलेगा, पैसा वही पहुंच रहा है। तो यू आर एक्सपोज और यू आर अंडर द रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन एंड प्राइस वोलेटिलिटी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली बैंक्स का एक्सपोजर जिन पुअर पीपल को नहीं होगा, अगर उन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है किसी जगह पे बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, तो काफ़ी दिक्कत रहेगी उनको पैसा उनके ट्रांसफर होए और पैसा वो निकाल पाए। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से डीबीटी फेल कर सकता है।
और स्पेंडिंग मनी ऑन नॉन फूड आइटम्स। ऑब्वियसली जो पुअर पर्सन है वो नॉन फूड आइटम में पैसा खर्च कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो फूड में ही खर्च करे, नॉन फूड में भी खर्च कर सकता है। और इस वजह से क्या है ना कि फूड के लिए उसके पास पैसा ना बचे, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये डीबीटी में एक प्रॉब्लम है, नेगेटिव साइड है, जो कि गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो डीबीटी इज फार 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 मोर फ्रूटफुल एज कंपेयर टू टीपीडीएस। तो अभी आज के टाइम पे अगर आप देखें तो टीपीडीएस में नेशनल फूड सिक्योरिटी, क्योंकि उसको लीगल बैकिंग मिल गई है, तो गवर्नमेंट टीपीडीएस के माध्यम से फूड ग्रेन्स दे रही है। बट अभी डीबीटी के माध्यम से भी गवर्नमेंट, जहां पे डीबीटी गवर्नमेंट ने लागू किया हुआ है, तो वहां पे डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट जो है पैसा पहुंचा रही है, लेकिन टीपीडीएस भी साथ में चल रहा है। बट गवर्नमेंट का फोकस है कि आने वाले कुछ समय में डीबीटी को यूनिवर्सलाइज करके टीपीडीएस को खत्म कर दिया जाए। तो टीपीडीएस को खत्म करना मतलब टीपीडीएस तो रहेगा, बट जो कि फिजिकली स्टोर करना पड़ता है ग्रेन, अभी जो कि अभी एफसीआई को खरीदना पड़ता है एमएसपी पे, और एफसीआई गोडाउन्स में स्टोर करता है, और फिर फेयर प्राइस शॉप, जो उसकी फेयर प्राइस शॉप्स हैं एफसीआई की, वो फेयर प्राइस शॉप्स, दैट इज नॉट एक्चुअली फेयर प्राइस शॉप्स ऑफ एफसीआई, बट वो स्टेट गवर्नमेंट की हैं। तो एफसीआई स्टेट गवर्नमेंट को बेचता है वो फूड ग्रेन्स एट ए फ्लोर प्राइस, जो कि एमएसपी, ऑब्वियसली एफसीआई ने एमएसपी पे खरीदा है, बट एफसीआई एमएसपी पे नहीं बेचता, उसको एक सब्सिडाइज रेट पे स्टेट को बेचता है। जैसे कोई 20 रुपए का सामान ग्रेन है, उसको 10 रुपए में बेचता है स्टेट गवर्नमेंट को। अब उस पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी अगर देना चाहती है तो दे सकती है, अगर नहीं देना चाहती तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है इसके ऊपर, तो एक तो एफसीआई को सब्सिडी दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ऑब्वियसली आपको पता चल गया, क्योंकि एफसीआई ने वो खरीदा एमएसपी के ऊपर। एफसीआई के पास पैसा कहाँ से आया, एफसीआई का पैसा आया, गवर्नमेंट ने दिया। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वहाँ पे 10 रुपए का, स्टेट गवर्नमेंट अब 10 रुपए का ना बेचे, 2 रुपए का बेचे, उसके लिए 8 रुपए की सब्सिडी देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरी की पूरी सब्सिडी देती है। कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स भी सब्सिडी थोड़ी देती हैं इसके ऊपर, बट मेनली अभी टीबीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो ये बेसिकली आपका टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैंने आपको समझाया, टीपीडीएस एंड डीबीटी, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ टीपीडीएस एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीटी। अब मैं आपको ये लेक्चर, सो आई एंड हेयर माय लेक्चर, दिस लेक्चर, एंड आप कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक करें और बेल आइकन बटन भी प्रेस करें, ताकि कोई भी लेक्चर मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड जो मैंने आपको बोला था कि टीपीडीएस में बीपीएल और एवाई को कितनी प्राइस पे ग्रेन मिलता है, उसका मैं डिफरेंस आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो मैं कमेंट सेक्शन में अभी डाल दूंगा आफ्टर अपलोडिंग माई लेक्चर। एंड आई होप यू लाइक माई लेक्चर, एंड नाउ आई विल डिलीवर माई नेक्स्ट लेक्चर ऑन दी ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, वो अगला लेक्चर होगा, प्लस दी रिसेंट अमेंडमेंट इन असेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है 1955, उसको हम समझेंगे, इश्यूज, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, प्लस रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम समझेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आईएएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कमिंग आपका जो मेंस एग्ज़ाम आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली वेट करें मेरा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो आई विल थैंक यू ऑल।